علاقائی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے خبر ہے مبینہ ملزم وقار کے برادر نسبتی عباس نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عباس کا تعلق شیخوپورہ کے علاقے کلا ستار شاہ سے ہے اور عباس نے بیان دیا ہے کہ وہ عابد کے ساتھ کام کرتا تھا مگر کسی واردات میں وہ ملوث نہیں ہے۔ مبینہ ملزم وقار الحسن کے 4 بھائیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عباس کا تعلق شیخوپورہ کے علاقے کلا ستار شاہ سے ہے۔ بات کریں گے شیخوپورہ سے ہمارے نمائندے محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف مزید بتائے گا اس کے اہل خانہ کے بارے میں کوئی بیان سامنے آیا ہو؟ دیکھیں فضا، جو سانحہ موٹر وے کے ملزم وقار کے جو برادر سے نسبتی ہیں جو کہ شیخوپورہ کا علاقہ ہے قلعہ ستار شاہ، وہاں کا رہائشی بتایا گیا، اس نے جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، جس نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بتایا ہے کہ وہ جو مرکزی ملزم عابد کے ساتھ ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے مگر اس کے ساتھ کسی بھی جو قسم کی واردات میں ہے جو وہ ملوث نہیں ہے۔ اس کے بعد جو عباس کے بھائی اور والد نے کا کہنا ہے کہ عباس فیکٹری میں جو ہے وہ ٹھیکیدار ہے، جو عابد تھا وہاں پر ملازمت بھی کرتا تھا، وہ اکثر عباس سے موبائل لے کر استعمال کرتا تھا مگر اس سے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس سے بات کرتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ عباس کسی قسم کے جرائم میں جو ہے وہ ملوث نہیں ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کسی بھی تھانے میں ابھی تک جو ہے وہ کوئی ریکارڈ درج ہے۔ انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے شفاف جو تحقیقات ہے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ عباس کا مزید کہنا ہے کہ میری اپنی جو ہے وہ 3 بیٹیاں ہیں، میں ایسا کام کرنے کا جو ہے وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذرائع سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب سے کچھ دیر پہلے معلوم ہوا ہے کہ پولیس نے علی ٹاؤن میں جو ہے وہ ریڈ کر کے مبینہ ملزم جو وقار الحسن کے 4 جو بھائی ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ جو ملزم وقار الحسن کا ایک بھائی پہلی جو ہے وہ بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے رکھا ہے۔ ملزم جو وقار الحسن کے 5 بھائی ہیں جن میں 3 جو برادر سے نسبتی اور سسر جو ہے وہ پولیس کی جو ہے حراست میں ہے، لیکن جو مین جو مرکزی ملزم عابد ہے وہ تو حال جو ہے وہ پولیس کی گرفت سے اب تک جو ہے وہ باہر ہے۔ جی فضا، بہت شکریہ آصف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حافظ آباد میں ایف آئی اے کی ملی بھگت سے انسانی اسمگلنگ کا دھندا تھم نہ سکا ہے۔ غیر قانونی ایجنٹ مافیا سنہرے مستقبل کا خواب سجائے 11 نوجوانوں کی جان لے گیا ہے۔ اغوا کاروں نے نوجوان کو اغوا کے بعد قتل کر کے لاشیں ویرانے میں پھینک دی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے حافظ آباد میں۔ انسانی اسمگلنگ کا دھندا جو کہ ابھی تک رک نہیں سکا ہے اور 11 نوجوانوں کی یہ جان لے گیا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے مظہر حیات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مظہر بتائے گا ان نوجوانوں کی شناخت کن ناموں سے ہوئی ہے اور کہاں سے ان کا تعلق ہے؟ حافظ آباد میں ایف آئی اے کی ملی بھگت سے انسانی اسمگلنگ کا دھندا تھم نہیں سکا ہے۔ غیر قانونی ایجنٹ مافیا سنہرے مستقبل کا خواب سجائے 11 نوجوانوں کی جان لے گیا ہے۔ اغوا کاروں نے نوجوانوں کو اغوا کے بعد قتل کر کے ان کی لاشیں ویرانے میں پھینک دی ہیں۔ سنہرے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے یہ 11 نوجوان جو کہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ حافظ آباد میں ایف آئی اے کی ملی بھگت سے یہ واقعہ پیش آیا ہے انسانی اسمگلنگ کا، اور غیر قانونی ایجنٹ مافیا سنہرے خواب دکھاتے تھے ان نوجوانوں کو، اور جو 11 نوجوان جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اغوا کاروں نے پہلے انہیں اغوا کیا ان نوجوانوں کو اور اس کے بعد ان سب کو قتل کر دیا، اور آپ کو بتاتے چلے کہ ان کی لاشیں بھی ویرانے میں پھینک دی ہیں۔ یہ حافظ آباد میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے۔ مظہر حیات سے مزید بات کرتے ہیں۔ مظہر بتائے گا مزید کیا تحقیقات میں سامنے آیا؟ جی بالکل، حافظ آباد کے رہائشی نوجوان جو غیر قانونی طور پر ایجنٹ مافیا کے ہاتھوں اٹلی اور یورپ کے ممالک کے لیے نکلے، یورپ جانے والے 11 افراد ایران کے شہر سروان میں قتل ہو گئے۔ نوجوانوں کو یورپ کے سنہرے خواب دکھا کر ایجنٹس ایران کے راستے یورپ لے جا رہے تھے۔ ان قتل ہونے والوں میں حافظ آباد کے 9 علاقے پاڑ لکھن، ملا رحمت آباد، بجلی منا اور مضافات کے نوجوان شامل ہیں۔ مرنے والوں میں شعیب، ندیم، آصف اور ذیشان اور محمد مصطفیٰ وغیرہ شامل ہے۔ اغوا کاروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوانوں کی فوٹیج اور تصاویر جو ہیں وہ پبلک نیوز کو موصول ہو گئی ہیں۔ اغوا کاروں نے لوائقین کے مطابق اغوا کاروں نے ہمارے بچوں کو بےمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا ہے۔ اب ہماری لاشیں واپس کرنے پر بھاری رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 4 نوجوان اغوا کاروں کو بھاری تاوان ادا کرنے کے بعد پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور جو پاکستان پہنچے نوجوان ان کے مطابق اب بھی 25 سے 30 حافظ آباد شہر کے نوجوان اب بھی اغوا کاروں کے چنگل میں ہیں۔ لوائقین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر جو قتل ہونے والے ہیں ان کی لاشوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
कलर कहार के नजदीक सॉल्ट रेंज में ब्रेक फेल हो जाने के बाद कंटेनर हिफाजती दीवार से टकरा गया है। अफसोसनाक हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जान बहक हुए हैं। जराये के मुताबिक रावलपिंडी से कराची जाने वाला सामान से लदा कंटेनर सॉल्ट रेंज में ब्रेक फेल होने से उलट गया है। रेस्क्यू टीम की इमदादी कार्रवाई से कबल ही मज़कूरा अफराद ने जान दे दी। आपको बताते चले कि कलर कहार में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ब्रेक फेल हो जाने की वजह से। मजीद इस वाक़े से मुतालिक बात करते हैं फैसल अमान से। फैसल, मजीद बताइए। जी बिल्कुल, मोटरवे पर रावलपिंडी से कराची जाने वाला सामान से लदा कंटेनर सॉल्ट रेंज में उलट गया। हादसे में 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। दोनों अफराद की मैयतें रेस्क्यू ने ट्रामा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दी। इत्तलात के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल हो जाने की वजह से पेश आया, जबकि जान बहक ड्राइवर और कंडक्टर का ताल्लुक शेखपुरा से बताया जा रहा है। वाक़े के बाद रेस्क्यू 1122 के एहलकार मौके पर पहुंच गए और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी, मगर मज़कूरा अफराद इससे कबल ही जान की बाजी हार चुके थे। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सांगला ही में बुर्का पोश घरों में घुसकर शहरियों को हिरासा करने लगा है। मुलजिम दीवार फैलाकर खवातीन के कपड़े कैंची से काटता है और फिर उन्हें जख्मी कर देता है। इलाके में शदीद खौफ और हिरास के बायस बाज लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। इस तमाम मामले की फुटेज पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जिला पुलिस हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी एक्शन लेने का मुतालबा भी कर दिया है। मियाँ शकील अहमद से मजीद बात करते हैं। शकील, मजीद बताएगा पुलिस क्या कहती है? जी, सांगला हिल के इलाका अहमदाबाद में पुरअसरार और खौफजदा कर देने वाले वाक़यात रूनुमा होने लगे। बुर्कापोश नौजवान जो है घरों की दीवारें फैलाकर घरों के अंदर दाखिल होने लगा, कैंची और छुरी के वार करके खवातीन के कपड़े काटने लगा और उनको बुरी तरह जख्मी करने लगा, जिससे इलाके में खौफ व हरास पैदा हो चुका है और लोग जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं और नकल मकानी करने की फुटेज जो है वो पब्लिक न्यूज़ ने मौसूल कर ली है। गुज़श्ता रोज़ पब्लिक न्यूज़ पर खबर नशर होने के फौरी बाद डीपीओ ननकाना साहब ने एक्शन लिया और डीपीओ ननकाना साहब सांगला। बहुत शुक्रिया आपका शकील, आप हमें सांगला हिल से अपडेट कर रहे थे। बिनते हवा कभी तशद्दुद तो कभी सफाकियत का निशाना बनती है। रहीम यार खान में भी 14 साल लड़की से असले के जोर पर ज्यादती की गई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे गुलाम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम हसन, बताइएगा मुकदमा दर्ज करने के बाद मजीद क्या तफ्तीश की जा रही है पुलिस की जानिब से? देखिए, तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जो है 14 साल लड़की से ज्यादती का ये जो वाक़या ये थाना तरंडा मोहम्मद पनाह के इलाके गाजीपुर में पेश आया है, जिसमें खालिद दरखान नामी मुलजिम ने जो है वो 14 साल मिसबा नामी लड़की को घर में अकेला पाकर जो है असलिया के जोर पर ज्यादती का निशाना बनाया है। जिसके बाद मुलजिम जो है वो मौका से फरार हो गया था। तमाम वाक़े की इत्तला मिलते ही जो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्ची के वालदा की मुद्दत में जो है मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। जी शुक्रिया आपका। और हाफिजाबाद की बासर शख्सियात के लिए इलाका गैर से स्पेशल शराब मंगवाई जाने लगी है। जी हां, पुलिस ने छापा मार के मुलजिम सैमुअल उर्फ भुट्टो को गिरफ्तार करके 120 बोतलें विलायती शराब की बरामद कर ली हैं। मुलजिम के कब्जे से 4,30,000 रुपए की करेंसी भी मिली है। पुलिस ज़राए का कहना है कि भुट्टो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, मगर बासर शख्सियात की सिफारिश से बच निकलने में कामयाब रहा है। आपको बता रहे हैं हाफिजाबाद की बासर शख्सियात के लिए इलाका गैर से स्पेशल शराब मंगवाई जाने लगी है। पुलिस ने छापा मार के मुलजिम सैमुअल उर्फ भुट्टो को गिरफ्तार करके 120 बोतलें विलायती शराब की बरामद कर ली हैं और नकदी भी बरामद कर ली है। मर्दान में पुलिस का जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 3 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं। असलहा, कीमती मोबाइल और छीने गई ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 65,000 नकदी बरामद कर ली गई है। तहकीकात के बाद मुलजिमान ने अपने जुराइम का एतराफ़ भी कर लिया है और पुलिस ज़राए के मुताबिक 25 अगस्त को मुलजिमों ने असले के जोर पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोबाइल छीनने की वारदात की थी। पुलिस टीम ने साइंसी बुनियादों पर इन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है और इन मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। 65,000 नकदी भी के कब्जे से बरामद कर ली गई है। इसके अलावा असलहा, कीमती मोबाइल और छीनी गई ट्रैक्टर ट्रॉली, ये तमाम सामान बरामद किया गया है। 3 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस ने मर्दान में कार्रवाई करते हुए। बारखान में आपको बताते चलें कि कस्टम हुकाम ने कार्रवाई की है और एक ट्रक से 3 करोड़ से ज़्यादा मालियत का छालिया और गैर मुल्की सिगरेट्स बरामद कर लिए गए हैं। हुकाम के मुताबिक ट्रक के ऊपर कोयला लोड था, जिसके नीचे नॉन कस्टम सिगरेट और छालिया मौजूद थे। कस्टम हुकाम ने स्मगलर्स की कार्रवाइयों को नाकाम बनाने के लिए इस ऑपरेशन का आगाज़ किया था। आपको बताते चलें कि कस्टम चेक पोस्ट में बड़ी कार्रवाई की गई है। बारखान में एक ट्रक से 3 करोड़ से ज़्यादा मालियत का छालिया और गैर मुल्की सिगरेट्स बरामद कर ली गई हैं।
नारोवाल के नवाही इलाके अहमदाबाद में लेडी चोरों के जनरल स्टोर पर वारदात, बच्चों के सूट चुराकर फरार हो गई हैं। पब्लिक न्यूज को सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि एक खातून चोरी कर रही है जबकि दूसरी निगरानी कर रही है। शहरी और ताजर हलकों का कहना है कि नौसरबाज चोर खवातीन का गिरोह पूरे शहर में सरगर्म है। पुलिस हुकाम फौरी तौर पर इन जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार करें। नारोवाल में ये चोरी की वारदात हो रही है और खवातीन चोर गिरोह सरगर्म है। मीरपुर खास में सिंध हुकूमत और ज़िले हुकाम की बेहिसी खुलकर सामने आ गई है। सैलाब से मुतासरीन आज भी खुले आसमान तले बेयारो मददगार मदद का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान की खबर गिरी तक नहीं की है। भूख प्यास और सख्त धूप में मुतासरा खानदान बिलख रही हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि उनकी फौरी तौर पर मदद की जाए और वरना मौसम की शिद्दत के बायस बेशतर मुतासरीन निढाल हो जाएंगे। ये वो तमाम सैलाब से मुतासर अफराद हैं जो कि कहते हैं कि इनकी मदद को कोई नहीं पहुंचा है। ना तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अब इन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि उनकी फौरी तौर पर मदद की जाए। लाड़काना में महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से बनाए गए आर्जी ऑक्सीडेंट्स जल्द वबाले जान बन गए हैं। ज़रा के मुताबिक तालाब में अब तक 6 बच्चे डूब कर जाँ बहक हो चुके हैं। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आशिक पठान। शहर के सीवरेज के पानी गंदे को फिल्ट्रेशन करके और रेस केनाल में डालने के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से यहाँ पर 6 पॉन्ड बनाए गए हैं। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। एक पॉन्ड पर आप देख सकते हैं कि इस पॉन्ड की गहराई जो है वो 15 फीट है, कोई दीवार नहीं है और इसको स्टोन पिचिंग नहीं की गई है। यहाँ के इलाका मकीनों का ये कहना है कि गंदे तालाब में 6 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं डूबकर और चंद मवेशी भी जो हैं वो भी हलाक हो चुके हैं। तो यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पे बदबू और ताफुन फैल चुका है, मच्छरों की बहुतात है और हमारे जो पानी है वो भी इससे मुतासिर हुए हैं। तो उनका ये मुतालबा है कि इसको शहर की बाहर के इलाकों में मुंतकिल किया जाए। जी पब्लिक न्यूज़ पर खबर नशर पर कोट चट्ठा तहसील इंतजामिया हरकत में आ गई है। इमरजेंसी इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। हुकाम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और ज़रूरी इंतजामात का जायजा भी लिया है। पब्लिक न्यूज़ पर खबर नशर हुई थी जिस पर फौरी तौर पर कोट चट्ठा की तहसील इंतजामिया हरकत में आई है और इमरजेंसी इलाके में फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया है। हुकाम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और तमाम ज़रूरियात का और तमाम इंतजामात का खुद जायजा लिया है। वेलकम बैक। इलाकाई खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। हुकूमत ने शादी हॉल्स खोलने का इंदिया दे दिया है। शादी हॉल्स मालिकान और मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इफ्तिखार अली से। इफ्तिखार, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस WHO की हदायत पर हुकूमत की जानिब से तमाम तर कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए थे। ताहम यहाँ पर तफरीही मकामात और तालीमी इदारे भी बंद थे। अब चूँकि तालीमी इदारे भी खुलने जा रहे हैं और तमाम कारोबारी मराकज़ भी खुल चुके हैं और इसी तरह से जो है वो मैरिज हॉल्स भी खुलने का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ ओहदेदारान मौजूद हैं मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के, जिन्होंने इस ऐलान के बायस जो है वो यहाँ पर अभी ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले और मिठाइयाँ भी तकसीम की। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उनको हमारे बिज़नेस का ख्याल आया और उन्होंने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है मैरिज हॉल ओपन होने के वाले से। तो इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर गवर्नमेंट के साथ भी तावन करेंगे। इसके अलावा हमारा मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह विद होल्डिंग टैक्स को ख़त्म किया है वो हमें PRA के वाले से भी टैक्स में रिलीफ दे और इसके टैक्स को भी फौरी तौर पर ख़त्म करे और इस बिज़नेस के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला 20 बिज़नेस जो है वो चलेंगे और जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। शुक्रिया। जो है वो मैरिज हॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आमिर साहब, बताइएगा क्या कहते हैं SOPs? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी खुशी में शामिल हुए। हम तो 7 अगस्त से अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमें नोटिफिकेशन का पता चला है हमने अपने वर्करों को खुशखबरियाँ भी सुना दी हैं, हमने सफाइयाँ भी कर दी हैं, सारा मामला किया है और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अब ये हुकूमत जैसे हमने उनसे तावन किया है वो भी इंतज़ामिया के साथ हमारे साथ तावन करे। हम SOP के जो मुताबिक चल रहे हैं वो हम सिर्फ चल रहे हैं, वो हम चल सकते हैं। तो इसलिए जनाब आज हम हमारे वेटर, हमारे वर्कर, हमारे
हमारे गनमैन, पूरा हमारा अमला जो लाखों बेरोज़गार थे, आज इसी खुशी में आप देख सकते हैं हम बंगड़े भी डाल रहे हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम कर रहे हैं, और हम दोबारा हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा डिस्टर्ब ना हो। शुक्रिया। शुक्रिया। ये जितने भी ओहदेदारान हैं, मैरिज हॉल एसोसिएशन के वर्कर्स, मुलाजमीन आज बहुत पुरजोश हैं इस ऐलान के बाद कि मैरिज हॉल्स खुलने जा रहे हैं। ताहम आज वो इस अज़्म का भी जो है वो इजहार कर रहे हैं कि वो हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन करेंगे और SOPs पर अमल दरामद भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और पंजाब हुकूमत ने कोविड के बायस बंद स्कूल्स खोलने के फैसले के बाद बच्चों ने स्कूल जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल का तरीकाकार बताया जा रहा है। बच्चे बहुत खुश हैं कि एक अरसे के बाद स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। इसी बारे में बता रहे हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे शाहिद इमरान कुरैशी। जी बिल्कुल, एक तवील अरसे के बाद जो है स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। इस हवाले से बच्चों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं स्कूल जाने के लिए, और वालिदैन की जानिब से जो है बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ वालिदैन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। मैडम, किस तरह के स्कूल खुलने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, स्कूल खुलने जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है इसके स्कूल खुले जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो निसाबी साल था वो भी ज़ाया हो गया था। तो अब खुशी है कि चलें बच्चों की तरफ कोई तवज्जो देंगे। बच्चे घर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, चाहे जितनी भी कोशिश करें, लेकिन स्कूल का माहौल एक अलग ही होता है। तो खुशी है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, और दुआ करते हैं कि जितने भी स्कूल वाले हैं वो भी जो उन्हें SOPs दिए गए हैं उन पर अमल करवाएँ और हमारे बच्चों को सेफ़ रखें। और हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपने अपने आप को सेफ़ रखना है, किस तरह सैनिटाइज़र यूज़ करना है, किस तरह से मास्क को वेयर करना है, और किस तरह आपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। तो ये चीज़ें सारी हम अपने बच्चों को भी गाइड कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए हैं उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्कूल्स और जितने भी तालीमी इदारे हैं वो उस पर अमल करवाएंगे और हमारे बच्चों को सेफ़ रखेंगे। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका यही कहना है कि बच्चे जो है घर में बोर हो रहे थे, निसाबी सरगर्मियाँ जो है वो भी शुरू नहीं की जा सकती थी कोरोना की वजह से, और वो बच्चे भी इस वक्त बड़े खुश नज़र आते हैं कि स्कूल खुल रहे हैं। और वालिदैन भी जो है बच्चों को कोरोना SOPs के हवाले से बता रहे हैं कि किस तरह जो है सैनिटाइज़र को इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह मास्क पहना जाता है। और इनका ये भी कहना है कि अब स्कूल इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो कोरोना SOPs पर जो है मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए, ताकि कोरोना की वबा से जो है बचा जा सके। जी। और गुजरात के शहरियों में डेंगू बारे शऊर पैदा करने के लिए आगाही वॉक मुनक्किद की गई है। वॉक तहसील चौक से शुरू हुई और DC कम्प्लेक्स पर इख्तिताम पजीर होगी। मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस वॉक में शिरकत की है, और गुजरात के शहरियों को डेंगू बारे शऊर बेदार करने के लिए ये आगाही वॉक का एहतमाम किया गया था। डेंगू के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर डेंगू से बचाव के लिए अपनानी चाहिए हैं, उस बारे में बताया गया। अवाम में शऊर पैदा करने के लिए ये आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। बहावलपुर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल स्टैंड्स की भरमार है। अलकरम प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल स्टैंड की वजह से ट्रैफिक जैम रहती है, और शहरियों के साथ विक्टोरिया अस्पताल के लिए एम्बुलेंस को गुजरने में भी दुश्वारी का सामना रहता है। दूसरी जानिब पुलिस एहलकार कहीं नजर नहीं आते हैं। इसी के मंजर कशी कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ जफर इंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं अलकरीम प्लाजा के बाहर, जहाँ पर गैर कानूनी साइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं, मोटरसाइकिल स्टैंड बनाए हुए हैं। यहाँ पर लोगों से भत्ता वसूल किया जा रहा है, जबकि इंतज़ामिया का कहना है कि हमने ये स्टैंड नहीं बनवाए हुए। इंतज़ामिया के बोर्ड लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर मोटरसाइकिल स्टैंड कायम है और लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ दुकानदारों से जब इस सिलसिले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया हमें अल्टरनेट जगह दे दे जहाँ पर हम प्लाजे की पार्किंग को बना सकें और वहाँ पर हम मोटरसाइकिल खड़े करें, ताकि ये वाला इशू हल हो जाए। अगर बात की जाए इस रोड पर थोड़ा आगे जाकर भाल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर मेन रोड है, ये सारा दिन ट्रैफिक होती है। यहाँ से एम्बुलेंसेस गुजरती हैं, एम्बुलेंस में सीरियस किस्म के पेशेंट भी होते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ पे 10-10, 15-15 मिनट लग जाते हैं, ट्रैफिक जैम रहती है। लेकिन इंतज़ामिया इस सिलसिले में ख्वाब खरगोश में सोई हुई है, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अवाम का इंतज़ामिया से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए और इस पर नोटिस लेते हुए इस साइकिल स्टैंड को ख़त्म किया जाए। और जहलम का गुंजानाबाद इलाका सुलेमान पार्क से अवाम पीने के पानी से महरूम हो गई है। लाखों रुपए की लागत से लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया है। पीने के लिए साफ पानी न मिलने की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ झेलम के गुंजानाबाद इलाका मोहल्ला सलमान पारस में। यहाँ 3000 की आबादी के लिए साफ पानी के लिए लगाया गया फिल्टर प्लांट जो है वो नकारा हो चुका है। इस वक्त जो है अहले इलाका साफ पानी पीने से महरूम है। ये सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको साफ पानी ना मिलने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। ज़िली इंतज़ामिया को इस्लाह अहवाल का मुतालबा करते हैं कि ज़िली इंतज़ामिया फौरी तौर पर इसको फाल करे, क्योंकि पानी भरने के लिए हमें जो
है ना कैंट में जाना पड़ता है। हमारी माएँ बहनें हम इससे गैरतें वाले हैं, लेकिन यहाँ पानी जो है ना मिलने की वजह से हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बड़ा दुश्वारी का सामना है। हम मुतालबा करते हैं इसको फौरी तौर पे जो है ना फाल किया जाए, इसको बेहतर किया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद इलाका मकीनों का यही मुतालबा है ज़िली इंतज़ामिया से कि फ़िल्टर प्लांट को बहाल किया जाए ताकि इन्हें साफ़ पानी जो है पीने के लिए मुहैया हो सके। जी, कहाँ है इंतज़ामिया, कहाँ है उसके वादे? रास्ते पानी में गुम हैं और गलियां बाजार तालाब बन चुके हैं। लाहौर के इलाके चुंगी अमर सदू में शहरी कचरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर मोहम्मद अली कॉलोनी में अभी भी बारिश का पानी जो कि अजाब बना हुआ है। इलाका मकीनों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार है और इबादत के लिए मस्जिद में जाना भी इंतहाई मुश्किल है। इलाका मकीनों का कहना है कि आखिर इस इलाके से क्या दुश्मनी है कि लाहौर के इस इलाके के लोग अजियतनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चुंगी अमर सदू के शहरी जो कि कचरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जेकबाबाद के इलाके अहमद मियां शाख में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। मुतादिद घर ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी बारे में बता रहे हैं सिद्दीक बलोच। जेकबाबाद से आपको बता रहे हैं जहां पर पानी जो है वो घरों में दाखिल हो रहा है और जेकबाबाद के इलाके अहमद मियां शाख में 30 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया है। पानी घरों में दाखिल हो चुका है जिसके बायस मुतादिद घर ज़ेरे आब आ चुके हैं। सिद्दीक बलोच से मजीद बात करते हैं। सिद्दीक, बताएगा क्या इंतज़ामिया हरकत में आई अभी तक? जी, जेकबाबाद के गुंजान आबादी वाले इलाके अहमद मियां सुमरों से गुजरने वाले अहमद मियां शाख को 2 दिन कबल 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद घर ज़ेरे आब आ गए। घरों में 3 से 4 फुट पानी जमा होने की वजह से कई लोग नकल मकानी करके चले गए, जबकि उन्होंने अपने घर का सामान भी महफूज जगह पर मुंतकिल किया। शिगाफ के बारे में महकमा आपाशी को इत्तला दी गई, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके तहत शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत शिगाफ को तो बंद किया, मगर 2 दिन गुजरने के बावजूद इंतजामिया ने शिगाफ के पानी की निकासी के लिए कोई हिकमत अमली कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ताहाल पानी खड़ा है और इस पानी से मुख्तलिफ बीमारियां और वबाई अमराज फैलने के खदशात हैं, जबकि लोगों को आने जाने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हालिया बारिशों के दौरान जिला दादू में महकमा खुराक की लापरवाही, 31 सेंटर्स में खुले आसमान तले पड़ी गंदम की बोरियां खराब हो गई हैं। कंट्रैक्टर की अदम दिलचस्पी के बाद महकमे को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है, बता रहे हैं मजीद अब्दुल हई। बिल्कुल, मैं इस वक्त दादू के करीब फक्का गंदम के कच्चे सेंटर पर मौजूद हूँ। दादू ज़िले भर में 31 कच्चे सेंटर हैं जहाँ पर 5 लाख से ज़ायद बोरियाँ मौजूद हैं और हालिया बारिशों के दौरान 5 लाख बोरियाँ को शदीद नुकसान पहुँचाए और पानी लगने की वजह से और गंदम की बोरियाँ में बदबू हो गई है। और जब हमारी बात हुई DFC मंसूर मीरानी, उसका कहना है कि 2 माह पहले मैं सेक्रेटरी महकमा खुराक और डिप्टी डायरेक्टर समेत आला दीगर अफसरों को मैं लिखत में दे चुका हूं कि यहाँ पर जो बोरियां पड़ी हुई है कच्चे सेंटर पे, उसको हैदराबाद बेस और बोलड़ी बस में शिफ्ट कराया जाए। ताहाल ठेकेदार की नाली अदम दिलचस्पी की वजह से उसको बोरियां यहाँ से रोज़ाने के बुनियाद पे 10,000 बोरियां शिफ्ट करनी थी, मगर उन्होंने की नाली की वजह से, शिफ्ट ना होने की वजह से ये बोरियां ख़राब हो चुकी हैं और 3 अरब से ज़ायद लागत रखने वाली ये नुकसान ये बोरियां हैं और इसमें मज़ीद नुकसान का अंदेशा है। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। कुछ ही देर बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।